Om Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 45, which has 45 verses. Viswamitra tells Rama how in the remote past the gods and the demons jointly churned the ocean of milk using the Mount Mandara as the churning rod. How Shiva drank off the deadly poison that first came out of this churning, and how as a result of the churning there appeared Lord Dhanvantri, the bevy of all the Apsaras, the beverage known by the name of Varuni, and the horse Uccaihsrava, and Kaustubha gem and nectar, and how the conflict of the gods and the Daityas ended in the destruction of the latter. आज हम बालकांड के पंचचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 45वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 45 श्लोक हैं और इसमें देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें 45 श्लोक हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्र मथाब्रवीत। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले। Struck with great wonder to hear the speech of Viswamitra, Sri Rama, scion of the Emperor Raghu, along with Lakshmana, forthwith spoke to Viswamitra as follows. अत्युद्भुत मिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागर सेयापि पूर्णम। ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। Most wonderful, O holy Brahmana, in this charming and sacred story told by you to us of the descent of Ganga to the terrestrial plane, as well as how the evacuation made by the sons of Sagara came to be filled up by it. क्षण भूतेव नवरात्रिः संवृत्तेयं परम तप इमाम चिंतयतोः सर्वां निखिलेन कथाम तव। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। This night has slipped past us, the two brothers, like an instant, O tormentor of internal enemies in the shape of lust, anger, and so on, even as we pondered on your entire story in detail. तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथाम शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। The whole night, O friend of the universe, slipped past me as well as Lakshmana, the son of Sumitra, as I pondered with him on this charming story. ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताहिनकं रिंदमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके
तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, Then on the day having clearly dawned, Sri Rama, a scion of Emperor Raghu, the subduer of his enemies, submitted as follows to Viswamitra, whose only wealth was his asceticism and who had just finished his daily routine of devotions. गता भगवती रात्रिः श्रोतवयं परमं श्रुतं तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथगा नदीम। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। The sacred night hallowed by the narration of the story of Ganga's descent has passed. That which was most worthy of hearing has been heard. Now, let us cross the holy river Ganga, which flows a threefold course and is the foremost of all rivers. नौरेशा हि सुखास्त्रीणां ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। Here indeed is a boat furnished with an agreeable matting to sit on and sent by the rishis of meritorious deeds, which has expeditiously appeared on coming to know of your holinesses having arrived here. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कार्यामास सर्षसंघयस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। Hearing the aforesaid submission of the celebrated and high-souled Sri Rama, a scion of Emperor Raghu, Viswamitra, a scion of King Kusha, caused Sri Rama along with Lakshmana and the whole host of rishis accompanying the sage, including himself, to be ferried across the river. उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य शिरगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। Then, having reached the opposite bank of the Ganga and duly greeted the host of rishis waiting there to receive the distinguished party, they, Vishwamitra and his followers, saw the city of Vishala in the distance while seated on the banks of Ganga. ततो मुनिवर स्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालाम नगरीम रम्याम दिव्याम स्वर्गोपमाम तदा। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। Accompanied by the two scions of Raghu, Vishwamitra, the foremost of hermits, then hastily proceeded from that place to the delightful and heavenly city of Vishala, which vied with paradise. अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्रांजलि विर्भूतवा विशालामुत्तमाम पुरीम। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। With folded hands as a mark of respect, the exceptionally wise Sri Rama forthwith made the following inquiries of the eminent sage Vishwamitra concerning the foremost city called Vishala. कतमो राजवंशो अयम विशालायाम महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते परम कौतूहलम हिमे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। I wish to hear, O great sage, what celebrated dynasty of kings is ruling at present at Vishala. For great is my curiosity on this account, and God bless you.
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। Hearing the aforesaid request of Sri Rama, Viswamitra, a jewel among sages, proceeded to relate in the following words a well-known old legend relating to the foundation of Vishala. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयताम राम शक्रस्य कथाम कथयतः श्रुताम अस्मिन् देशे हि यद वृतं शृणु तत्वेन राघव। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इसमें जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। Hear from me, O Rama, even as I narrate it, the story of Indra throwing light on the glory of Vishala as heard by me. Hear, O Sian of Raghu, in reality, what actually happened in this region. पूर्वं कृत युगे रामदितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। In a Satyug of old, very mighty sons were born to Diti and highly blessed ones were born to Aditi, both of whom were powerful and exceptionally pious. तत्स्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन महात्मनाम अमरा विजराश्चैव कथम श्यामो निरामयाः। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। In course of time, even as they grew up, O tiger among men, the following thought haunted these high-souled beings. How can we possibly become immortal, immune from old age, and proof against maladies and illnesses? तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। Even as they reflected, an idea occurred to them at the moment, intelligent as they were, about churning the ocean of milk. We can surely obtain the immortalizing drink from it. ततो निश्चित्य मथनं योक्तरं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुर मितौजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। Making up their mind to churn the ocean and using Vasuki, the king of serpents, as a cord and turning Mount Mandara into its churning rod, the gods as well as the demons, who were possessed of infinite strength, then started churning the ocean. अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र स्पर्श शिरांसी च वमन्तो अति विषम तत्र ददंशुर दर्शनैः शिलाः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंद्राचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। Now, after 1000 years, the heads of the serpent that had been used as a cord began to bite the rocks, forming part of Mount Mandara with their fangs, throwing up copious venom. उत्पातग्नि संकाशम हालाहल महाविषम तेन दग्धम
जगत सर्वम सदैवासुर मानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। As a result of the churning, there appeared on the surface of the ocean all of a sudden a deadly poison bearing the name of halahal. The whole universe, comprising of gods, demons, and human beings, began to be consumed by it. अथ देवा महादेवम शंकरम शरणार्थिना जगमुहु पशुपतिम रुद्रम त्राहि त्राहीति तुष्टवुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। The gods thereupon mentally sought the great divinity Rudra, the deity presiding over destruction, the protector of the embodied spirit that has been likened to a beast because of its bondage. Seeking protection with him and glorifying him, they appealed and yelled, saying, "Save us, protect us." एव मुक्तस्ततो दैवैर्देव देवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततो अत्रैव शंख चक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। Addressed thus by the gods, Lord Shiva, the controller even of the rulers of the gods, forthwith appeared on the spot, and immediately thereafter appeared on the very same spot Lord Sri Vishnu, wielding a conch and a discus. उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतेर्मध्यमं माने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत् त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्र पूजामह स्थित्वा गृहाणेदं विषम प्रभु। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। Sri Hari spoke smilingly as follows to the aforesaid Lord Rudra, the wielder of the trident. That which has appeared in the very first instance on the ocean being churned by the gods, conjointly with the demons, is really speaking your share, O jewel among gods, since it is you that takes the lead among all the gods. Therefore, standing here, O Almighty Lord, accept this poison as the tribute being offered in precedence over all others. इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ त्रैवांतर धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्णिंगणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोत्पमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। Having said so, Lord Vishnu, the foremost among gods, went out of sight on that very spot. Perceiving the fright of the gods and listening to the extortion of Lord Vishnu, the wielder of the bow made of horn, Lord Shiva, the destroyer of the universe and the ruler of the gods, for his part, swallowed and treasured up in his throat the deadly poison named halahal, as though it were nectar, and leaving the gods, departed to his own realm. ततो देवासुराः सर्वे ममन्तु रघुनंदन
प्रविवेशाथ पातालम मंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। Thereupon the gods as well as the demons all proceeded once more to churn the ocean of milk, O delighter of the Raghus, and immediately Mount Mandara, the foremost of mountains that served as their churning rod, sank into Patala, the lowest of the subterranean regions. ततो देवाः सगंधर्वा स्तुष्टु वुर्मधुसूदनम त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसाम पाल्यास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तु मर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य कैश्वः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममंथ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान उदतिष्ठत् सदुर्मात्मा सदंडः सकमंडलुः पूर्वं धन्वंतरि नाम अप्सराश्च सुवर्चस्सः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। Protect us, O mighty armed one, and be pleased to lift up the mountain from the depths of Patala. Hearing this, Lord Vishnu, the ruler of the senses of all, assumed the form of a divine tortoise and, supporting the mountain on his back, lay down at the bottom of that ocean. Holding fast with one hand the top of the mountain and taking up his position in the midst of the gods, Lord Sri Hari, the ruler even of Brahma and Lord Shiva, the supreme person and the soul of the universe, took part in the churning. Then after 1,000 years emerged with a staff and a kamandal in hand, first of all a male personage, Dhanvantri by name, the very embodiment of Ayurveda, the science of medicine, whose mind was given to extreme piety, and then a great bevy of celestial nymphs possessed of great splendor emerged. अपसु निर्मथना देव रसात तस्माद वर स्त्रियः उत्पेतुर मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सर सो अभवन। नरश्रेष्ठ मंथन करने से ही अप जल में उससे रस से भी वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। From the very cream, the ras, produced as a result of that famous churning done in the water or up in the form of milk of that ocean, emerged these excellent and beautiful damsels, or jewel among men. Therefore, they became known as the Apsaras. षष्टिः कौटियो अभवंस्ता सामप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्ये यास्तु काकुतस्थ यास्तासां परिचारिकाः। काकुतस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी, और जो
उनकी परिचारिकाएं थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। 600 million was the number of these exceptionally effulgent nymphs, while those who served as their female attendants were innumerable in number. Ocean of the Kukusta clan. नताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिगृह्णादेव ता वै साधारणाः स्मृताः। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। All those gods and demons refused to accept them as wives. Due to their non-acceptance alone, they came to be known as public women. वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पापात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। Then emerged from the ocean of milk, ocean of Raghu, the highly blessed Varuni, the deity presiding over spirituous liquor, a daughter of Varuna, the god presiding over the waters, looking for a husband. दितेः पुत्रा न ताम राम जगृहुर वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्ता मणिनिंदिताम। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। The demons, son of Diti, O Rama, did not take to wife and then the said Varuni, but the gods, the sons of Aditi, O valiant one, accepted her irreproachable as she was. असुरास्तेन दैत्येयाः सुरास्ते नादितेः सुताः हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन वारुणी गृह्णात सुराः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। For that reason, the sons of Diti came to be known as Asura, those who did not accept Sura or wine, while for the same reason, Aditi's sons became known as Suras, those who would take wine. The gods felt thrilled and overjoyed due to their acceptance of Varuni. उच्चैःश्रवा हय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठ नर श्रेष्ठ तथैवामृत मुत्तमम। नर श्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैः श्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। Next emerged a jewel among men, Uccaihsrava, the foremost of all horses, Kaustubha, the most valuable of all gems, and even so, nectar, that excellent drink. अथ तस्य कृते राम महानासीत कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रादिति पुत्रान योधयन। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। Now over nectar there ensued a colossal destruction of the two races, gods and demons. On that occasion, the sons of Aditi actually fought the sons of Diti. एकता मगनम सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन न महाघोरम वीरम त्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। All demons got united with the ogres. The result was a most deadly conflict that bewildered all the three worlds, heaven, earth, and the space intervening them. O valiant Rama, यदा क्षयं गतं सर्वं
तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत तृणे माया मास्थाय मोहिनी। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। When the whole host of gods and demons approached destruction, the exceptionally mighty Lord Vishnu then hastily carried away the nectar, exhibiting his deluding potency in the form of a charming damsel. ये गताभिमुखम विष्णु मक्षरम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभु विष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। Those who opposed the immortal Lord Vishnu, the supreme person on that occasion, were completely crushed in an encounter by the almighty Vishnu. अदितेरात्मजा वीरादिते पुत्रान निजन घिरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैते यादित्योर भृशम। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। In this terrible major conflict between the sons of Diti and those of Aditi, the heroic sons of Aditi completely destroyed the sons of Diti. निहत्य दिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः शशास मुदितो लोकान सर्षिस संघान सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चरणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। Having destroyed the sons of Diti and attained sovereignty, Indra, the destroyer of strongholds, felt delighted and ruled the three worlds, including the hosts of rishis and the Kannaras, celestial bands. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 45 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyam। धन्यवाद। Dhanyavad.